کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. الہ از معبود. تو اس سے کیا ہے، تشریح آپ اچھے طریقے سے الہ کی دیکھ چکے ہیں ڈاکٹر ظفر کے ساتھ. میرے سلائیڈ سیٹ میں بھی آپ کو کچھ ایکسٹرا سلائیڈز ملیں گی جو ڈاکٹر ظفر نے ڈالی ہیں، بیوٹیفل میننگ، اور آپ کو غور و فکر کے لیے الہ کا مطلب آپ ڈیپلی اس کو سمجھ سکتے ہیں اپنے ٹائم میں. اس کی تشریح اذان کے سبق میں گزر چکی ہے. موت کو یاد رکھیے، یہ بھی ایک ہیبٹ ہے. جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو گا وہ جنت میں داخل ہوگا. ابو داؤد کی ذریعے سے حدیث ہے. قریب المرگ شخص کو، جو موت کے قریب ہو، کبھی کبھی انسان کو پتہ چل جاتا ہے، ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں، تو ان کو بھی تلقین کرنی چاہیے ہمیں اگر ہم ان کے ارد گرد ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. الہ کون ہے؟ جس کے یہ بس ایک سلائیڈ میں نے اس میں کور کی ہے، لی ہے، باقی سب ادھر آپ کو ملیں گی انشاءاللہ دونوں لیسنز میں جو آج ہم کر رہے ہیں. وہ احتیاج کی حالت میں حاجت روائی کر سکتے. Welcome to Global Information Security Society for Professionals of Pakistan. میں نے کہا آپ کی کمی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آج ہم ابھی لیسن 6 جاری کریں گے جو فالو آن کرتا ہے لیسن 5 سے. ڈفرینسز دیکھیں گے انشاءاللہ جو فجر کی اذان میں ہے اور باقی نمازوں کی اذان میں ہیں، اور جو اقامت دی جاتی ہے جماعت سے پہلے اس کو انشاءاللہ غور کریں گے، اور کچھ دعائیں سیکھیں گے انشاءاللہ جو وضو کے بعد ہمیں کرنی چاہیے. ہیبٹ میں ہیں ہم انشاءاللہ تو اس سے اور مضبوط کرنا ہے، اگر ہیبٹ میں نہیں ہے تو اس دعا کو یاد کر کے انشاءاللہ اپنی عادت میں لائیں گے. تو like always بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، سورہ طٰہٰ میں ہم ہر لیسن میں ڈالتے ہیں. جس کے ذہن میں نہیں ہے انشاءاللہ اسے یاد کرنے کی کوشش کریں. پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. واٹ اے بیوٹیفل دعا. تو اسی طرح سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. نقص سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ریفرنس ہے. ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں، we know very little. جتنا آپ نے ہم کو دیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے. حقیقت میں سب کچھ جاننے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہیں، اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں. جاننے اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں. انکا انت العلیم الحکیم. تو انکا آپ کے گرامر سے آپ کو ہیلپ کرے گا، انتا بھی آپ کی گرامر سے آپ کو ہیلپ کرے گا، اور علیم اور حکیم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں سے ہیں، تو خوبیوں میں سے ہیں. تو فجر کی اذان، اقامت اور گرامر میں ہم بی، فی اور الا 3 نئے پرپوزیشن سیکھیں گے جو فالو آن کرتے ہیں، جو ابھی آپ نے سیکھے ہیں ڈاکٹر ظفر کے ساتھ. تو سیم پیٹرن، ایک دفعہ آپ ٹی پی آئی کی ہیبٹ میں آ جائیں تو آپ وہی نئی پروپوزیشن، نئی ورڈز اسی انداز سے سیکھیں گے. تو انشاءاللہ اس سبق میں ٹوٹل 6 نئے الفاظ جو 600 ٹائمز اس کی آپ کہہ رہے ہیں آپ کو بینیفٹ ملے گا ان ٹرمز آف ریپیٹیشن. ٹوٹل آپ کا 63 ہو جائے گا انشاءاللہ اس لیسن کے بعد، اور وہ قرآن کریم میں ریپیٹیشن کے حساب سے over 23,000 ٹائمز ان کا بینیفٹ آپ کو ملتا ہے. تو حی علی الفلاح کے بعد اذان میں فجر کی نماز کے وقت الصلاۃ خیر من النوم کہا جاتا ہے 2 دفعہ. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ بہت آسان مطلب ہے. الصلاۃ نماز، جو ہمیں پتا ہے صلاح کے لیے جا رہے ہیں، نماز کے لیے جا رہے ہیں. خیر بہتر، گڈنس. تو اور من النوم، من ہم کر چکے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں بھی، من از سے، اور النوم جو سی ہے وہ نیند. تو جو آیت الکرسی پڑھتے ہیں انہیں النوم کا ورڈ بھی آتا ہے. تو اس میں nothing new, there is nothing new here for you. الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے نیند سے. جس طرح ماشاءاللہ ڈاکٹر ظفر نے آپ کو بتایا اذان کدھر سے آئی، کہ کیا بیسس تھی، کیا فاؤنڈیشن تھی. تو یہاں پہ الصلاۃ خیر من النوم کا ورڈ کس طرح ایڈ ہو گیا اذان کے اندر فجر کی.
تو یہ بھی اسی صحابی سبحان ربی اللہ کی بدولت ہے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح کی اذان کے نماز کی اطلاع کرنے کے لیے گئے. تو معلوم ہوا کہ ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ لگی ہوئی ہے. تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، 2 دفعہ کہا تو 2 دفعہ ایڈ ہو گیا. سبحان اللہ. تو ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ میں آپ کو اس کا ریفرنس انشاءاللہ ملے گا. الصلاۃ خیر، نماز بہتر ہے. کس چیز سے؟ من النوم، نوم، نیند سے. تو یہ 3 دفعہ نوم کا ورڈ ہے جس کا آپ کو بینیفٹ ہوگا. تو 1 دفعہ تو آیت الکرسی میں اور آتا ہے. تو الصلاۃ خیر من النوم، نیند موت کے برابر ہے، ایک لمبی نیند ہے موت تو. اور نماز اصلی زندگی ہے. نماز اللہ کی پکار ہے اور نیند ہمارے نفس کی پکار. نیند جسم کے لیے راحت ہے اور نماز روح کے لیے. تو یاد رہے کہ نیند جسم کے لیے راحت ہے، لیکن صبح کے وقت اگر فجر کی نماز کے وقت ہم سوتے رہیں تو نقصان دہ بھی ہے کہ زیادہ تر جو دماغی اور دلی بیماریوں کا حملہ ہوتا ہے وہ صبح کے وقت ہی ہوتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صبح کے وقت جو فضا میں تازگی ہوتی ہے جو دی ہے، وہ فجر کی نماز اگر ہم پڑھنے نہ جائیں تو وہ مس ہو جاتی ہے. میرے ساتھ بھی اکثر کافی ہوتا ہے، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ مرد حضرات کو کہ ہم مسجد میں جا کے انشاءاللہ پڑھیں. ہمارے ایک کرنٹ ٹائمز کے ایک بہت بڑے مفتی ہیں، مفتی اسماعیل ابن موسیٰ مینگ. ان کے ایک لیکچرز میں نے سنا، وہ بات دل کو لگ گئی کہ کتنے لکی ہیں تمام مسلمان دنیا کے جو صبح فجر کی نماز کے لیے جاتے ہیں. اور جو آکسیجن، جو صبح کے وقت تو ٹریفک بھی کم ہوتی ہے، جو آکسیجن، the best oxygen is reserved for Muslims, he says. اللہ اکبر. تو وہ آپ انہیل کریں تو آپ کو مزہ اور ہی آتا ہے. تو دل کے ساتھ اور مل کے انشاءاللہ ڈاکٹر ظفر کے ساتھ ہم پریکٹس کریں گے. آپ بھی گھر میں اسے اونچا اونچا پڑھیں تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھے. تو الصلاۃ، نماز، الصلاۃ نماز، خیر من النوم، خیر من النوم، بہتر ہے نیند سے. بہتر ہے نیند سے. الصلاۃ خیر، الصلاۃ خیر، نماز بہتر ہے. نماز بہتر ہے. من النوم، من النوم، نیند سے. نیند سے. الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے نیند سے. نماز بہتر ہے نیند سے. جزاک اللہ خیر. تو آگے چلتے ہیں. ابھی اذان کور ہوگی انشاءاللہ اچھے طریقے سے. ڈاکٹر ظفر نے آپ کو کور کرائی، میں نے بس چھوٹا سا ایڈ کیا ہے. تو ابھی اور ایکسٹرا کیا چیز ہے جو اقامت میں کہی جاتی ہے؟ قد قامت الصلاۃ، یقیناً نماز کھڑی ہو گئی. 2 بار کہا جاتا ہے اس سے بھی. تو اس پہ لٹرل میننگ لیتے ہیں. قد، البتہ، قامت کھڑی ہو گئی، کھڑے ہونا، کھڑی ہو گئی. تو تا اینڈ میں ہے تو کھڑی ہو گئی. الصلاۃ، نماز، نماز کھڑی ہو گئی. تو اذان اس بات کا اعلان ہے کہ لوگ نماز کے لیے مسجد میں آئیں. اور اقامت ان لوگوں کے لیے ہے جو مسجد میں موجود ہیں یا مسجد کی طرف آ رہے ہیں اور ان کو سنائی دیتا ہے قد قامت الصلاۃ. اس کا مطلب جو مسجد میں آ چکے ہیں، نماز کا انتظار کر رہے تھے، اب نماز کھڑی ہو گئی. البتہ کھڑی ہو گئی نماز. اٹس اے ڈن ڈیل. قد، already it's happened now. کھڑی ہو گئی نماز. ابھی انشاءاللہ فرض پڑھے جائیں گے. تو البتہ ہو چکا. قد over 400 times. تو already, certainly it's a done deal. البتہ ہو چکا. قد کا مطلب یہ ہے قامت کھڑی ہو گئی نماز. آگے ہے الصلاۃ، تو قامت الصلاۃ کھڑی ہو گئی نماز. تو مل کے کرتے ہیں. قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، البتہ کھڑی ہو گئی نماز. البتہ کھڑی ہو گئی نماز. قد، البتہ، قد، البتہ، قامت کھڑی ہو گئی. قامت کھڑی ہو گئی. الصلاۃ، نماز. الصلاۃ، نماز. میں عربی پڑھوں گا، آپ ترجمہ کریں گے انشاءاللہ. گھر میں ریپیٹ کریں. قد قامت الصلاۃ، البتہ کھڑی ہو گئی نماز. جزاک اللہ خیر. الصلاۃ، نماز. جزاک اللہ خیر. تو ماشاءاللہ دس از اٹ فار اذان اور اقامہ. ابھی آگے چلتے ہیں وضو کے پہلے اور بعد کے اذکار.
शुरू करना है ये हैबिट इंशाल्लाह नंबर 2 हमने सीखी है और हम करते हैं इस तरह। कभी कभी इंसान भूल जाता है लेकिन याद रखने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। बिस्मिल्लाह, वुजू करने से पहले नाम से अल्लाह के, ये तो सबको पता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छे तरह वजू करने की फजीलत देख लें कि जिसने अच्छी तरह ध्यान से वजू करके और फिर ये दुआ पढ़े जो अभी हम कवर करने लगे हैं, तो जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं, वो जिससे चाहे दाखिल हो जाए। यू हैव चॉइस। सुभान रब्बी अल्लाह। तो ब्यूटी ये है कि ये दुआ आपको आती है, कलमे में भी है और अजान में भी है जो अभी आपने कवर की है, बस थोड़े से एडिशंस हैं और अगेन कलमे में है। तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ये अभी हमने कवर किया है। मैं गवाही देता हूं कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। इलाहा इज माबूद। तो इससे क्या है, तशरी आप अच्छे तरीके से इलाहा की देख चुके हैं डॉक्टर जफर के साथ। मेरे स्लाइड सेट में भी आपको कुछ एक्स्ट्रा स्लाइड्स मिलेंगी जो डॉक्टर जफर ने डाली हैं, ब्यूटीफुल मीनिंग और आपको गौर व फिक्र के लिए इलाहा का मतलब आप डीपली उसको समझ सकते हैं अपने टाइम में। इसकी तशरी अजान के सबक में गुजर चुकी है। मौत को याद रखिए, ये भी एक हैबिट है। जिसका आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो जन्नत में दाखिल होगा। अबू दाऊद की जरिए से हदीस है, करीब उल-मर्ग शख्स को जो मौत के करीब हो, कभी कभी इंसान को पता चल जाता है, डॉक्टर जवाब दे देते हैं, तो उनको भी तलकीन करनी चाहिए हमें अगर हम उनके इर्द गिर्द हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करो। इलाहा कौन है, फिर जिसके ये बस एक स्लाइड मैंने इसमें कवर की है, ली है, बाकी सब उधर आपको मिलेंगी इंशाअल्लाह दोनों लेसन्स में जो आज हम कर रहे हैं। वो एहतियाज की हालत में हाजत रवाई कर सकता है। इलाहा अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज द ओनली इलाहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। खतरात में पनाह दे सकता है सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात। इत्तराब में सुकून बख्श सकता है, सो एंजाइटी जिसे कहते हैं उसमें सुकून अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात से ही मिल सकता है। इसकी तरफ इंसान का शौक और अकीदत के साथ, यानी पैशन और डिवोशन के साथ हमने ये करना है। इसके जब रिसिटेशन करनी है, इसको जब दोहराना है तो मीनिंग के साथ, तसव्वुर और एहसास के साथ। और कुरान से 2 रेफरेंस यहाँ पे सिर्फ दिए गए हैं। सूरह यूनुस की एक आयत है जिसका मतलब है वो अल्लाह के सिवा उनकी इबादत करते हैं जो इनको ज़रर पहुंचाने पर कादिर हैं न नफा, और कहते हैं कि अल्लाह के हाँ हमारे सिफारिशी हैं। तो काफिरीन की बात हो रही है, इनकार करने वालों की बात हो रही है, यहूदियों की बात हो रही है कि जिन्होंने अल्लाह के सिवा दूसरों को अपना माबूद बनाया, नाउज़ुबिल्लाह, और वो ये समझते हैं कि ये मतलब है ना वो उन्हें नफा दे सकते हैं ना नुकसान दे सकते हैं, लेकिन कहते हैं कि ये अल्लाह के हाँ हमारी सिफारिश करने वाले हैं। नाउज़ुबिल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से डायरेक्ट राब्ता है हमारा। तो इंशाअल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह ये चीज ज़हन में रखनी है। शिर्क से बचना है, हर हाल में शिर्क से बचना है। सूरह तौबा की आयत का रेफरेंस का तर्जुमा ले लेते हैं। उन्होंने अपने उलमा और राहिबों को अल्लाह के सिवा अपना रब बना लिया, नाउज़ुबिल्लाह। और ईसा इब्न मरियम की मसीह इब्न मरियम अलैहिस्सलाम को भी रब ठहराया, नाउज़ुबिल्लाह। हालांकि ईसा अलैहिस्सलाम तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की एक नबी हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वहदानियत का ऐलान करने भेजे गए थे। हालांकि इन्हें सिर्फ एक अल्लाह की इबादत का हुक्म दिया गया था जो ईसा अलैहिस्सलाम ने भी दिया था, जिसके सिवा कोई और इलाह नहीं है। अनफॉर्चुनेटली द क्रिश्चियंस ऑफ टुडे एज वेल, तो वो होली स्पिरिट में 3 चीजों को मानते हैं। तो हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं, तो वो पैगाम यही लेके आए हैं तमाम अंबिया की तरह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। एक इमरजेंसी डॉक्टर ने एक रेफरेंस अपने एक्सपीरियंस से दिया है, ये बात सुनने में आई है कि 10-12 लोगों को अपने सामने उसने मरते हुए देखा, उनमें से सिर्फ 1-2 को फजीलत मिली ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने की। तो हमने सिर्फ गवाही नहीं देनी है, हमने अपने अमाल को भी ठीक करना है ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफीक दे सकें जब हमारे जाने का टाइम हो कि हमारे
लब पे भी कलमा शहादत हो। तो इस कलमे की अहमियत को जहन में रखना चाहिए। अगर अल्लाह का जिक्र जुबान पर रहेगा हमारी जिंदगी में तो इंशाअल्लाह हमें तौफीक मिलेगी मरते वक्त भी हम इस कलमे को दोहरा सकें। तो आगे अब चलते हैं, ये अब नया पार्ट है दुआ में, लेकिन जो कलमे से रिलेटेड है तो नया कुछ नहीं है। वाहदाहू, वो अकेला है। वाहदाहू, वो अकेला है। हु एंड में आ गया, आपकी टीपीआई आपको इंशाल्लाह हेल्प कर रही है। वाहिद कुल हुवल्लाहु अहद में भी अहद है, तौहीद है। ये सिंगल रेफरेंस है अल्लाह सुब्हानहू तआला की वहदानियत का। ला शरीका, ला नहीं, अभी आपने किया है ला, और शरीक, कोई शरीक। ला शरीक, नहीं है कोई शरीक। अल्लाह सुब्हानहू तआला इज अलोन, द वन एंड ओनली मालिक। तो शरीक की जमा है शुरका, यहाँ पे ला शरीका, नहीं है कोई शरीक, लाहू, उसका। तो शरीक हिस्सेदार, पार्टनर, अल्लाह सुब्हानहू तआला हैज नो पार्टनर्स। तो इसकी वजाहत की जा रही है यहाँ पे, इस पे फर्मनेस हो रहा है। पहले हो गया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, हो गया उसी में, लेकिन कितना इंपॉर्टेंट है वहदहू, वो अकेला है। सेकंड रेफरेंस, ला शरीक लहू, नहीं है कोई शरीक उसका, लाहू, उसका। इस तरह हम ग्रामर में करते हैं लाहू। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आपके लिए ज्यादा नई चीज नहीं होगी, मैं बैक दबा रहा हूँ आगे जाने की बजाय। तो हर वक्त दुआ कीजिए अल्लाह सुब्हानहू तआला से और एहतसाब कीजिए हम किधर फॉल शॉर्ट कर रहे हैं। डॉक्टर जफर ने प्लानिंग की बात की, विदाउट प्लानिंग एवरीबडी फेल्स। तो तबलीग करनी है, एंड में अल्लाह सुब्हानहू तआला के नबी का मैसेज आगे पहुंचाना है तसव्वुर और एहसास के साथ। हमने दिलचस्पी से समझना है और आगे बढ़ाना है। तो वहदहू ला शरीक लहू से और क्या है, यही है इसकी वहदनियत का फिर से 2 बार दूसरे अल्फाज में इकरार। वहदहू ला शरीक लहू, पहले आ गया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। कितना इंपॉर्टेंट है शिर्क से मुकम्मल बचना और निजात पाने की हम यहाँ पे फीलिंग ले रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला शिर्क को हरगिज माफ नहीं करते। तो शिर्क की खतरनाकी को जहन में रखते हुए पढ़िए कि हर गुडनेस हमारी लाइफ में जो है वो हम सिर्फ कोशिश करते हैं, लेकिन काम अल्लाह सुब्हानहू तआला की जात की अग्रीमेंट से ही होता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इज द अल्टीमेट मालिक, क्रिएटर, चरिशर, नरिशर, जो भी ले लें आप सिफात में से। तो मिलके हम करते हैं, वहदहू, वो अकेला है। वाहदहू, वो अकेला है। ला शरीका, नहीं है कोई शरीक। ला शरीका, नहीं है कोई शरीक। लहू, उसका। लहू, उसका। वहदहू ला शरीका लहू, वाहदहू ला शरीका लहू, वो अकेला है, नहीं है कोई शरीक उसका। वो अकेला है, नहीं है कोई शरीक उसका। मैं अरबी पढ़ूंगा, आप तर्जुमा करेंगे इंशाअल्लाह। वहदहू, वो अकेला है, ला शरीका नहीं है कोई शरीक लहू, उसका। जज़ाकल्लाह खैर। तो आगे चलते हैं, वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अगेन you've done वअशहदु अन्ना मुहम्मदन, अभी किया है अजान के सबक में। आगे देखते हैं डिफरेंस। अब्दुहु, उसके बंदे। देयर यू गो अगेन, अब्दुहु, द हु एट द एंड, उसके बंदे। अल्लाह सुब्हानहू तआला के बंदे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेस्ट बंदे हैं, खातमुल अंबिया हैं। और अब्दुहु, अब्द इज बंदा, और हु उसका। अब्दुल्ला एक नाम है, कॉमन नाम है, अल्लाह सुब्हानहू तआला का बंदा, जिसका मतलब है अब्दुहु, उसका बंदा। अल्लाह सुब्हानहू तआला के बंदे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसकी जमा है, अब्द की जमा है इबाद, और वा इज और रसूलहू, और उसके रसूल हैं। रसूलहू, उसके रसूल। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के बंदे हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला के रसूल हैं। इससे क्या सबक मिलता है? ऊपर रसूलुहु, अजान व रसूलुहु, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो आगे जाके इंशाल्लाह हम प्रैक्टिस करेंगे। ऊपर अजान के कलमात में इसकी तशरीह हम देख चुके हैं। यहाँ अब्द का लफ्ज, ये वार्निंग है एक तरह की कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहू तआला के एक बंदे हैं। उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला के नाउज़ बिल्लाह, जिस तरह ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम को अपना
खुदा का बेटा बना लिया, ये हम यहाँ पे खतरे से बच रहे हैं। हमारे कलमे में आ गया है, हमारी इस दुआ में आ गया है कि अल्लाह सुब्हाना ताला के खास बंदे, बेस्ट बंदे हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकीकी मर्तबा ये है कि वो अल्लाह के खास बंदे हैं, उसके बंदे हैं और उसके रसूल हैं। व रसूलुहु। तो वजू में शहादत और इस उम्मत में शिर्क के दरवाजे को बंद करने के लिए, फर्मली क्लोज करने के लिए, वाशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहु अकबर। अल्लाह सुब्हानहु व तआला has been very kind to us। तो हम सबको अल्लाह ने बनाया है और इस दुनिया की हर चीज को भी, इसलिए हम उसका सच्चा बंदा या बंदी बनने की हर वक्त कोशिश करनी चाहिए हमें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहु व तआला के बेहतरीन अब्द यानी बेहतरीन बंदे हैं, इसलिए ही इज द बेस्ट एग्जाम्पल। उसवा हुस्ना बेहतरीन नमूना है। कहाँ आया है इसका जिक्र? सूरह अहज़ाब में ट्वाइस। डॉक्टर जफर अभी आजकल सूरह अहज़ाब ही इस कॉमन ग्रुप जो हमारा बना हुआ है उसमें शेयर कर रहे हैं, जिसमें हर आयत की तशरीह मिलती है, का तर्जुमा मिलता है। तो यहाँ पे तर्जुमा है वर्स 21 का, दर हकीकत तुम लोगों के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक बेहतरीन नमूना था, हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह और यौम आखिर का उम्मीदवार हो और कसरत से अल्लाह को याद करे। अल्लाहु अकबर। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द बेस्ट ऑफ द एग्जाम्पल्स। और एक और आयत, सेट ऑफ आयत्स में यही इसी पर और कर सकते हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम्हें भेजा है गवाह बनाकर, गवाही है अशहदों में, बशारत देने वाला और डराने वाला बनाकर, अल्लाह की इजाजत से उसकी तरफ दावत देने वाला बनाकर, रसूल है व रसूलुहु, और रोशन चराग बनाकर, सिराजुम मुनीरा, सुभान रब्बी अल्लाह। बिशारत दे दो उन लोगों को जो तुम पर ईमान लाए हैं कि उनके लिए अल्लाह की तरफ से बड़ा फजल है। सुभान अल्लाह। तो ये दोनों चीजें हैं। देखें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह है और आगे वाह है, व अशहदु, और मैं गवाही देता हूं, अन्ना मुहम्मदन, के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुहु, उसके बंदे हैं, व रसूलुहु, और उसके रसूल हैं। It's all in one. There is no break. There is no or. You have to do both. अल्लाहु अकबर। तो प्रैक्टिस करते हैं मिलके इंशाअल्लाह। व अशहदु, और मैं गवाही देता हूँ, वाशहदु, और मैं गवाही देता हूँ, अन्ना के मुहम्मदन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहम्मदन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुहु, उसके बंदे, अब्दुहु, उसके बंदे, व रसूलुहु, और उसके रसूल हैं, व रसूलुहु, और उसके रसूल हैं। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। जज़ाकल्लाह खैर। तो दिस वाज इट, दिस वाज योर दुआ नंबर 1। दिस इज द वन जिसका रेफरेंस था कि 8 दरवाजे खुल जाते हैं। एक और ब्यूटीफुल दुआ है जो हम अब सेकंड दुआ की तरफ चलते हैं। यहाँ पे वर्ड्स थोड़े नए हैं लेकिन आपकी ग्रामर आपको अगेन हेल्प करेगी टीपीआई के जरिए। इजअलनी का मतलब होता है बना दे मुझे, और अल्लाहुम्मा इजअलनी मिनत तव्वाबीन। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इजअलनी, बना दे मुझे, नी इजअलनी, जिस तरह रब्बी है इसी तरह इजअलनी, बना दे मुझे, मिनत तव्वाबीन, मिन आ गया से, और अत्तव्वाबीन, खूब तौबा करने वाले, बना दे मुझे खूब तौबा करने वालों में से। सुभान अल्लाह। तो दिस इज, यहाँ पे आपको रेफरेंस भी मिल सकता है सूरह बकरा की आयत का, आपको सिमिलर वर्ड्स मिलेंगे उसमें। तो अल्लाहुम्मा इजअलनी, ए अल्लाह बना दे मुझे, इजअल बना दे, नी मुझे, इजअलनी, अल्लाहुम्मा इजअलनी, ए अल्लाह बना दे मुझे, मिनत तव्वाबीन, खूब तौबा करने वालों में से। तो आपको ये वर्ड आता ही होगा, ताबा इस पलटा, ताइब पलटने वाला, और तव्वाब बार बार पलटने वाला।
तो तवाब अल्लाह सुब्हाना व तआला के नामों में से भी है। तो हम अपने लिए यहाँ पे मांग रहे हैं, बना दे मुझे खूब तौबा करने वालों में से, यानी बार बार पलटने वालों में से जो तौबा करते हैं, अल्लाह सुब्हाना व तआला से माफिया मांगते हैं और आइंदा सही रास्ते पे चलने की तौफीक रखते हैं। तो ये है, और अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारी तौबा को इंशाअल्लाह बार बार एक्सेप्ट करते हैं। तो ये डबल मीनिंग है। तो आगे चलते हैं, व इजअलनी, वा और आ गया, इजअलनी इज अ रिपीट वर्ड फॉर यू नाउ, यू नो इट, अल्लाहुम्मा इजअलनी में आया था, तो यहाँ पे व इजअलनी, और बना दे मुझे, मिन इससे अगेन, अल मुतताहिरीन, मुतताहिरीन पाक साफ रहने वालों में से। सुभान अल्लाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल दुआ दिस इज। तो इंशाअल्लाह इसको हम आगे जाके इकट्ठे में प्रैक्टिस भी करेंगे। इससे क्या सबक है, इंसान बार बार गलतियां करता है, मैं गलतियां करता हूँ, आप गलतियां करते हैं, नहीं करने के काम करते हैं नाउजुबिल्लाह कभी कभी, या करने के काम सही तौर से नहीं कर सकते, इसलिए शदीद जरूरत है कि हम बार बार तौबा करें। आगे क्या है, तौबा की शराइत क्या है? तो सबसे पहले तो होता है बंदा एडमिट कर ले कि जी कुछ गलत काम हो गया, इंसान गलत काम करके उससे रुक जाए, और फिर क्या करता है, गलती पर शर्मिंदगी होती है, रिग्रेट किक्स इन, आइंदा करने का इरादा ना करना है, फिर उसके बाद पहले तो एडमिट करना है, फिर रिग्रेट करना है, फिर सॉरी बोलना है, तौबा भी इसमें आ गई, तौबा आ गई, और आइंदा ना करने का इरादा करना है। और ये जो लास्ट वाला है, ये मुझे इसी प्रोग्राम के थ्रू ही गौर इस पे करने का मौका मिला, और जिनका हक मारा है उनको हक लुटाना भी है। अल्लाहु अकबर। तो ये भी तौबा की एक शर्त में से आ गया है कि अगर खुदा न खास्ता किसी का हक मारा गया है हमसे, तो पूरी कोशिश करनी चाहिए उसका हक उसे वापस अदा करने के लिए। तो मुतत्तहिरीन से क्या है, पाकी से मुराद लिबास और मकान की पाकी, हर चीज की पाकी, अकीदे और हमारे ख्याल में, ख्यालात में क्या चल रहा है उनकी पाकी, अच्छे ख्याल इंशाअल्लाह हमारे होंगे और रहेंगे, बल्कि हर किस्म की पाकी नसीब फरमा दें। इट्स ऑल एनकम्पसिंग। मुतत्तहिरीन जो साफ रहने वाले थे, उन्हीं में से बना दे हमें भी, वाइजअलनी, मुझे बना दे। अपने लिए पर्सनल दुआ है, पर्सनलाइज दुआ है। तो इसके मिलके इंशाअल्लाह पढ़ते हैं डॉक्टर जफर की हेल्प के साथ, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, इजअलनी, बना दे मुझे, इजअलनी, बना दे मुझे, मिनत तव्वाबीन, मिनत तव्वाबीन, खूब तौबा करने वालों में से, खूब तौबा करने वालों में से, व इजअलनी, वइजअलनी, और बना दे मुझे, और बना दे मुझे, मिनल मुतत्तहिरीन, मिनल मुतत्ताहिरीन, पाक साफ रहने वालों में से। पाक साफ रहने वालों में से। मैं तर्जुमा करता हूँ, आप पढ़ें, आप माशाल्लाह मेरे से अच्छा पढ़ रहे हैं। ए अल्लाह, बना दे मुझे, अल्लाहुम्मा इजअलनी, खूब तौबा करने वालों में से, मिनत तव्वाबीना, और बना दे मुझे, वजअलनी, पाक साफ रहने वालों में से। मिनल मुतत्ताहिरीन। जज़ाकल्लाह खैर। तो इस दुआ को, टू बी परफेक्टली ऑनेस्ट विद यू, मैंने जब ये लेवल 1 किया था, इट वाज द फर्स्ट टाइम आई हर्ड दिस दुआ एंड आई इमीडिएटली वांटेड टू लर्न इट। तो इंशाल्लाह आपको जिसको आती है, सुभान अल्लाह, जिसको नहीं आती इंशाल्लाह कोशिश करें। बहुत ही सिंपल दुआ है, आपको ये वर्ड्स आते भी होंगे, ये उर्दू के ही वर्ड्स हैं, और माशाल्लाह सब उर्दू समझने वाले हैं पार्टिसिपेंट ज्यादा। तो इंशाल्लाह करेक्टली एंड क्विकली, इंशाल्लाह जिस तरह डॉक्टर जफर कहते हैं, इसी के रेफरेंस से जो भी आपने किया है, चैट क्वेश्चंस हैं, क्विज क्वेश्चंस हैं, चैट पे आ जाएं प्लीज, और प्लीज जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। नौमकुम के मानी, नौमकुम, आप सब के बारे में बात हो रही है। नौमकुम के मानी है, वेरी गुड, वेरी गुड, माशाल्लाह, आप सब की नींद। अब्दुहू का तर्जुमा, वेरी इजी, कम ऑन, अब्दुहू का तर्जुमा, एक ही आंसर है, अब्दुहू, वेरी गुड, उसका बंदा। अल्हम्दुलिल्लाह सबके आंसर्स करेक्ट हैं। इजअलनी के मानी,
इजअलनी, पर्सनल बात हो रही है, इजअलनी, वेरी गुड, माशाल्लाह, बना मुझे। अत्तवाबीन का तर्जुमा कीजिए, प्लूरल है, अत्तवाबीन। वेरी गुड, सबके आंसर्स ठीक हैं। जो वुजू के बाद दुआ पढ़ेगा तो क्या होगा? जन्नत का रेफरेंस है, वेरी इजी क्वेश्चन। Alhamdulillah, correct. C is popular today in answers. Okay, al-mutatahhirin का मानी, ये एंड हाफ है इसी दुआ का जो आज हमने कवर की है। इससे एक से ज्यादा जवाब हो सकता है इसमें। प्लीज रिमेंबर, सब चीजों की पाकी के बारे में जवाब के बारे में हमने बात की थी। करेक्ट, इट्स ऑल ऑफ देम, राइट। पाक रखते हैं अपने कपड़ों को, पाक रखते हैं अपनी सोच को, पाक रखते हैं अपने घरों को, पाक रखते हैं अपने ईमान को। तो सब ऑल आर हाईलाइटेड। सच्ची तौबा का तरीका ये है। क्या है सच्ची तौबा का तरीका? अभी हमने कवर किया है कि पहले छोड़ना है, फिर नहीं करना है, मतलब रिग्रेट करना है। इसमें भी सब जवाब हो सकते हैं। करेक्ट, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। गुनाह को छोड़ना है, आइंदा ना करने का इज़्म करना है, नदामत महसूस करनी है, दूसरों से अगर कोई हक मारा गया है तो उसको वापस देना है।